بادشاہ تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیرے لہو سے خداوند، تیرے لہو سے خداوند، ہر ایک دل بھی دھلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا راستہ ہے، یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا راستہ ہے، ابدی جیون ہر ایک کو، ابدی جیون ہر ایک کو تجھ سے مفت ملے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، بارش ہو روح پاک کی، جنبش ہو روح پاک کی، بارش ہو روح پاک کی، جنبش ہو روح پاک کی، ہر ایک دل میں اے یسوع، ہر ایک دل میں اے یسوع، روح کی آگ جلے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، خون میں تیری قدرت ہے، دل کو بدلنے کی طاقت ہے، خون میں تیری قدرت ہے، دل کو بدلنے کی طاقت ہے، تیرے لہو کی یہ ندیاں، تیرے لہو کی یہ ندیاں صبح و شام بہے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے،
زندہ آواز کے لیے تیار کرے. خداوند کا کلام برسنے کو ہے. ہمارا زندہ خداوند ہم سے ہم کلام ہونے کو ہے. کہیں خداوند میری جو بھی آج ضرورت ہے، میرے اندر جو بھی کمی ہے یا جو بھی کوئی پریشانی ہے، خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے دور ہو جائے. خداوند تیری آواز بلند ہونے کو ہے. تیری آواز سے خداوند کے خدا ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. تیری آواز سے خداوند کے خداوند آگ کے شعلوں کو تیری آواز چیر دیتی ہے. خداوند ہم تیری حضوری میں تیرے تابع ہیں، تو اپنی آواز کو بلند کر خداوند. ہم شنوا ہوتے ہیں خداوند، ہمیں سننے والے کان دینا، عمل کرنے والا دل دینا خداوند. جب تو ہم سے ہم کلام ہو خداوند، تو ہم مکمل تابع داری کے ساتھ تیری حضوری میں تیری آواز کو سنے خداوند. ہاللویا. اپنے گھرانوں کے لیے آج کا کلام مانگے، اپنے لیے کلام مانگے. کہے خداوند تو بول، ہم تیری آواز کو سنیں گے. ہاللویا. میں سسٹر ڈرگی سے ریکویسٹ کروں گی کہ سامنے آئیں، آج کے کلام کے لیے خدا کے خادم کے لیے دعا میں رہنمائی کریں. ہاللویا. پریز. شکر کرتے ہیں زندہ جلالی کا کا پیروں بھر کے خالی کو ہماری خدا پیاروں محبت سے بڑے پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. خدا اسی شفائی عبادت کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو نے ہمارے لیے اس دن کو مقرر کر دیا تاکہ ہم تیری حضوری میں چھکے اور تجھے خدا اپنے دل کی باتیں کہہ سکیں. اپنے آپ کو خدا تیرے آگے ڈھیلتے ہیں تو ہمارے دلوں کی جانچ پڑتال کر میرے خدا میں. آئے میرے قدوس باپ، ہم اس لائق نہ تھے لیکن خدا تو نے اپنے لہو کا فدیہ دے کر، اپنی جان کا فدیہ دے کر خدا تو نے ہم سبوں کو بے بول خرید لیا. آئے میرے قدوس اور میرے مہربان باپ تیرا شکر کرتے ہیں خدا. آج کا کلام ہمارے گھرانوں کی بہتری کے لیے ہو، آج کا کلام ہماری ضرورت کے مطابق ہو خدا. آئے میرے خدا ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو. ہاں خدا ہم تھوڑے ہیں لیکن خدا تو ہمیں تھوڑوں کو بھی تو پسند کرتا ہے. تو جان سے میری خدا پرستش کرنے والوں کو، میری آواز کو سننے والوں کو خدا تو پسند کرتا ہے. آئے میرے خدا تو ہمیں آج کے کلام کے مطابق خدا تو ہمیں جانچ پڑتال کر کے خدا ہمیں بڑا اجر دینا خدا اس بات کا. آئے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں میرے قدوس باپ کہ تو ہی ہمارا ہرابل ہے، تو ہی ہمارا جنابل ہے، تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی ہماری پناہ ہے میرے خدا. آئے میرے خدا جب بھی ہم کچھ تجھ سے مانگتے ہیں تو پوری امید اور پورے دل کے ساتھ مانگتے ہیں کہ میرا خدا میری دعا کو سنے گا اور جواب دے گا. ہاں خدا تیرے کان تو ہمیشہ ہماری آوازوں کی طرف ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے. آئے خدا تو دل سے مانگنے والوں کی دعاؤں کو تو سنتا ہے اور پورا کرتا ہے. آئے میرے قدوس باپ تیرے فضل والا ہاتھ ہمیشہ ہمارے اوپر ہے. آئے خدا دعا کرتی ہوں خدا ہمیں کبھی بھی کمزوری کی حالت میں نہ رہنے دینا خدا. جب ہم کمزوری میں آتے ہیں تو تبھی تو تیرا پاک روح ہمارے اندر جوش پکڑتا ہے، ہمیں ایک نئے سرے سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. خدا آج کے کلام ہم سبوں کو خدا بڑی برکت دینا خدا. اپنے بندہ کو ہمیشہ کی طرح زور سے استعمال کرنا خدا. آئے میرے قدوس باپ کے گھرانے کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں، پاسو صاحبہ کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں خدا. اپنی بندی کو خدا اسی طرح جوش میں رکھو خدا. تیری بندی کبھی بھی کمزور نہ پڑے. آئی خدا تیری بندی نے جو میرے گھرانے کو آئی میرے خدا تیری راہ دکھائی، اس کے لیے خدا تیری بندی کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنی بندی کو اس کے وسیلہ سے خدا تو خوب استعمال کر خدا. ہمیشہ ان کی زندگی اور تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا. اپنی بندی کو کبھی کمزور نہ پڑنے دینا میرے خدا. ہمیشہ اسی طرح ہمارے ساتھ شامل رہے خدا. آئے میرے خدا کو آئے کو تو نے استعمال کیا، تیرا شکر کرتی ہوں. آئے میرے خدا ہماری ضرورتوں کو تو پورے کرنے والا باپ ہے. آج بھی جو ہماری دلی خواہش ہے خدا جو بھی ہم ابھی تھے اور خدا اپنی تیری حضوری میں لے کے آرزوؤں کو آئے ہیں خدا تو ہماری دعاؤں کو سننا اور پورا کر خدا. تیرا شکر ہو. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے اسلامی بابرکت نام کے وسیلہ سے. آمین 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 آمین. میرے عزیزو وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں. آئیں زوردار تالیوں سے خداوند کے زندہ کلام کو، خدا کے خادم کو ویلکم کریں گے. پاسٹر عمران محمود. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو، اس کی تمجید ہو جو ہمیں اپنے قدموں میں اور اپنی کلیسیا میں جمع کرتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں ان کے بیچ میں ہوں.
اور یہ ہماری تسلی ہے، یہ ہمارا اطمینان ہے کہ ہمارا خداوند جب جب اس سے پکاریں اور جب جب ہم اس کے حضور میں جھکیں وہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ اور آج کی عبادت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خوشی، تسلی، اطمینان، برکت اور شفا کا باعث ہے۔ اور جو بھی اس میں شریک ہوتا ہے اور یہاں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے سے اسے سنتا ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ آمین۔ اور آئندہ ہفتے میں کس کی مانند بنوں کہ جو پروگرام ہے وہ آن ایئر ہوگا۔ آج ہم اس کی دعا بھی کریں گے، آج ہم اس کی ریکارڈنگ کی ہے اور کلیسیا اس کے لیے دعا کرتی رہے تاکہ کلام بہتوں تک پہنچے اور وہ تاثیر کرے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا کلام بے انجام نہیں لوٹتا، اور ہمیں یقین ہے کہ خدا کے پاک روح کی قدرت سے یہ کلام زندگیوں کو چھوئے گا اور ان کو بابرکت بنائے گا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ آسان کیا ہے۔ کیا آسان کیا ہے؟ واٹ از ایزی؟ واٹ از ایزی؟ یسوع مسیح نے کہا واٹ از ایزی؟ آسان کیا ہے؟ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے؟ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آسان کیا ہے یسوع مسیح نے کہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ یہی بات سننے کے اندر آتی ہے، کوئی کام آسان نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا، کوئی کام آسان نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یا یہ کہا جاتا ہے یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات اپنے دل سے نکال لو اور اس کے بارے میں سوچو بھی نہ کہ یہ
ہو سکتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اسے سوال اٹھایا ہے، آسان کیا ہے؟ آمین. یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ سوال اٹھایا ہے فقیہوں، فریسیوں اور عام لوگوں کو کہ آسان کیا ہے، آپ کے نزدیک آسان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں، مفلوج کو ٹھیک کرنا یا گناہ کو معاف کرنا. وہ تو کہیں گے کہ بھئی ان دونوں میں کوئی کام آسان نہیں ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو آسان نہیں ہیں بلکہ مشکل ہے اور انتہائی مشکل ہے. ایک دفعہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ اسحاق رکھنا. بائبل مقدس میں لکھا وہ دل ہی دل میں ہنسا. ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہوگا. اور پھر وہ اس کے گھر گیا اور وہاں پر کھانا کھایا. تو کھانا کھا رہے تھے، سارا وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی. خدا نے کہا کہ اگلے سال معین وقت کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کے بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ ہنس پڑی. تو خداوند نے پوچھا کہ یہ سارا کیوں ہنسی؟ اور وہ ڈر گئی اور اسے کہا میں نہیں ہنسی. اور اس خداوند نے کہا کیا خداوند کے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ کوئی بات ناممکن ہے؟ عزیز بہن بھائیو، خداوند کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے. اگر 100 سال کے بڈھے ابراہیم کی اولاد ہو سکتی ہے اور سارا 90 برس یعنی سن یاس کے بعد اس کی جنریشن اس کی اولاد ہو سکتی ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ اور پھر ہم آسان کس بات کو کہیں؟ آمین. لہذا ہم کسی انسان کے پاس نہیں آئے ہیں، اور یہ مفلوج کسی جو ہے وہ سرجن کے پاس نہیں گیا، کسی حکیم کے پاس نہیں گیا. وہ ایسے شخص کے پاس آیا ہے اور اس کے سامنے لا کھڑا کیا ہے جس کے سامنے کوئی بات مشکل نہیں ہے اور کوئی بات ناممکن نہیں ہے. آمین. اور ہم جس کے پاس آئے ہیں، ہم کیا کہیں؟ اے خداوند یہ نہیں ہو سکتا میرے لیے، یقیناً نہیں ہو سکتا، میرے لیے نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. پریز دی لارڈ. آپ اندازہ کیجئے مفلوج بھی سوچتا ہوگا جب اس کے 4 لوگوں نے جو ہے اس کو یہ اٹھایا تھا اور انہوں نے ایمان رکھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 4 آدمی جو ہے وہ آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے ایک مفلوج کو. آپ سوچئے مفلوج، آمین، مفلوج شخص، ٹھیک ہے، پیرالائز شخص. ٹھیک ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے اوپر جو ہے جس کو کوئی سٹروک ہو جائے، چاہے وہ رائٹ ہے یا لیفٹ ہے، وہ اپنے اثرات وہ چھوڑ دیتا ہے. اور وہ اس کے اگر وہ ہیل بھی ہو جائے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر کمزوری رہ جاتی ہے، اب وہ مکمل ہیل نہیں ہو پاتا، اور اس کی ساری زندگی کسی نہ کسی پارٹ کے اوپر اس کا اثر رہ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جس کے پاس جو ہے یہ مفلوج آیا ہے اس کا کوئی پارٹ کمزور نہیں رہا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. مفلوج جس کو خداوند نے اس کا علاج کیا ہے، اور اس کا علاج یسوع مسیح نے جو ہے وہ کس طور پر کیا ہے؟ لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند نے ان کے ایمان کو دیکھا، مفلوج کا ایمان نہیں بلکہ کن کے ایمان کو دیکھا؟ ان 4 آدمیوں کے ایمان کو دیکھا. جیسے کہ لکھا ہے اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا. کن کا ایمان دیکھ کر؟ ان کا ایمان. وہ شخص کہاں سے آیا نامعلوم، وہ کدھر سے آیا نامعلوم، اس کے رشتہ دار تھے یا نہیں تھے یہ نہیں معلوم، لیکن خداوند نے ان کا ایمان دیکھا کہ یہ اس شخص کو ساتھ لے کر اس شخص کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں چارپائی پر. 4 آدمی جو ہے یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ضرور ہے کہ یہ اس کے سامنے جائے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کو شفا دے.
बाहर दरवाजे के ऊपर भीड़ थी और अंदर पूरे तौर पर भीड़ थी। ये भी मालूम नहीं कि कितने लोग थे, लेकिन खचाखच जो है वो घर भरा हुआ था जहां पर खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहा था। उन्होंने एक तरकीब सोची कि क्यों ना हम इस दीवार को क्या करें, उधेड़ दें। और उन्होंने जो है पता नहीं कि वो उन्होंने मालिक मकान को जो है उससे इजाज़त ली कि नहीं ली, लेकिन उन्होंने जो है क्या किया है, वो छत उधेड़ दी। इतनी बोल्डनेस, इतनी दलेरी कि ये शख्स जो है वो शिफा पाए, ये मफलूज शिफा पाए, एक मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाए, एक मुश्किल बीमारी जो है वो उसमें से ये शख्स निकल जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुश्किल नामुमकिन बीमारी से कोई शख्स शिफा पा जाए? एक पैरालाइज शख्स जो है वो अपने पांव पर खड़ा होकर और अपनी चारपाई उठाकर चलना फिरना शुरू कर दे। ये टारगेट लेकर आए हैं और उन्होंने उधेड़ दी, उस घर को उधेड़ दिया और खुदावंद के पास उसको क्या कर दिया है, जो है वो नीचे उतार दिया है। अजीज भाइयों, काश जो है आज भी 4 आदमी जो है वो इस तरह का ईमान रखना शुरू कर दे और लोगों को खुदावंद के सामने खड़ा कर दे, खुदावंद के सामने ले आए। आमीन। हम ऐसे ईमान के अंदर तरक्की करें, हम ऐसे ईमान में खड़े हो जाएं कि क्या करें, बहुतों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने ले आएं, ताकि उनके ईमान के वसीले से क्या हो, वो मफलूज, वो बीमार, वो बदरुगरिफ्ता या कैसा भी क्यों नहीं वो शख्स और किसी भी मुश्किल के अंदर क्यों नहीं, किसी भी बीमारी के अंदर क्यों नहीं फंसा हुआ है, वो यीशु मसीह जो है उसे क्या कर सके, शिफा दे सके। हमें ऐसा ईमान या रखना होगा, हमें ऐसी दलेरी करनी होगी कि इस दलेरी के साथ हमें खुदावंद के सामने लोगों को लेकर आना होगा। हमें इस दलेरी के साथ जो है, इस ईमान के साथ कि वो आएगा तो यकीनन यह खुदावंद की हुजूर में दुआ की जाएगी तो वो शिफा पाएगा। आमीन। लिहाजा हमें ये दलेरी दिखाना होगी, हमें ऐसा ईमान दिखाना होगा और खुदावंद ने उनका ईमान देखा। आमीन। लॉर्ड आज भी ऐसा ईमान देखना चाहता है कि खुदावंद के लोग क्या करें, मसीह पर ईमान रख कर आए और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम इस ईमान के साथ आए हैं कि ये शख्स शिफा पाए, ये शख्स रहाई पाए, ये शख्स जिंदगी पाए, ये शख्स निजात पाए, ये शख्स एकदम तुझे जान जाए और ये तुझे पहचान जाए। आमीन। खुदावंद ने उनका ही ईमान देखा जो है उसे लेकर आए थे और फिर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह क्या हुए हैं, माफ हुए। आमीन। आप अंदाजा ये कीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुतों के गुनाह जो है बख्शवा सकते हैं। आमीन। हम बहुतों के गुनाह क्या कर सकते हैं, बख्शवाने का वसीला बन सकते हैं। ये 4 आदमी इस मफलूज के गुनाह को माफ की माफी के सबब बने हैं। आमीन। 4 आदमी क्या किस बात का सबब ठहरे हैं, इस मफलूज के गुनाहों की माफी का सबब ठहरे हैं। हम में से कौन है जो किसी शख्स के गुनाहों की माफी का सबब ठहर सकता है, ताकि वो शिफा पाए, ताकि वो रहाई पाए, ताकि वो निजात पाए और वो जिंदगी पाए। मफलूज, इसकी मफलूजियत जो है या इसका मफलूजपन जो है वो किस सबब से है, उसके गुनाह के सबब से है। तो लिहाजा मफलूज होना जो है ये गुनाह के सबब से है। और शायद आपको ये याद हो कि एक शख्स जो बैठे हज्जा के होश पर था और वो 38 बरस से जो है वो क्या था, मफलूज था, वो चल फिर नहीं सकता था। और उसने यीशु मसीह से कहा, जब उसने पूछा कि तू शिफा पाना चाहता है, उसने कहा मैं पाना तो चाहता हूं, लेकिन मुझसे पहले ही वो कोई शख्स जब वो हौज में जब वो उतर जाता है, क्योंकि जब फरिश्ता वो पानी हिलाता था तो वो उतर जाता है, मैं मुंह देखते रहता हूं क्योंकि मेरा कोई मददगार नहीं है। यीशु मसीह ने उस दिन उसको क्या किया है, उसे शिफा दी। और फिर जब दोबारा उससे यीशु मसीह को वो मिला तो खुदावंद ने उसको कहा, बेट आगे को गुनाह ना करना। लिहाजा अगर कोई शख्स जो है वो इस मफलूजपन का शिकार होता है तो इसका सबब, गहरा सबब क्या है, गुनाह है।
अगर कोई मफलूजपन की स्पिरिट का शिकार है तो इसका सबब क्या है? गुनाह है। और इसका बड़ा सबब अडल्ट्री, इसका बड़ा सबब हरामकारी, ज़नाकारी है। और जो लोग मफलूज होते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर जो है वो इब्लीस को दाव देते हैं, मौका देते हैं कि वो गुनाह करे। लिहाजा जो गुनाह करता है वो रूहानी तौर पर मफलूज होता है और साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी वो मफलूजपन का शिकार हो जाता है। अगर किसी शख्स ने जो है अपने मफलूजपन से रहाई हासिल करनी है, चाहे वो फिजिकली है और चाहे वो स्पिरिचुअली है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसे यीशु मसीह के पास आना चाहिए और वो क्या करेगा? उसके गुनाह माफ करेगा, या यूं कह लीजिए उसे तौबा की जरूरत है, उसे रिपेंट करने की जरूरत है। और जो ही वो रिपेंट करेगा, तौबा करेगा, अपने गुनाहों पर पछताएगा और उसे तरक करेगा और मसीह के ऊपर ईमान लाएगा, तो वो क्या करेगा? वो शिफा पा जाएगा। आमीन। पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उसके गुनाहों से उसे क्या किया है? रिहाई अता की है। जब यीशु मसीह ने उसको उसके गुनाहों से उसे रिहाई अता की और जब ये कहा कि बेटा तेरे गुनाह क्या हुए हैं? वो माफ हुए हैं। तो आप इन्वॉल्वमेंट देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें या इस जो है मौजे में देखें, तो इसका सबब कौन ठहरा है? वो जो 4 आदमी जो है वो इसका सबब ठहरे हैं। लिहाजा मैं आपको उभारना चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही किया करें कि बहुतों को मसीह के पास लेकर आएं। ऐसे बीमार जो बहुत जो है वो मुश्किल के अंदर है और वो अपनी बीमारी से रहाई हासिल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जरूर है कि वो तौबा करें और उनको तौबा कराई जाए और वो खुदावंद के पास आएं और इंस्टेंटली हीलिंग उनकी जिंदगियों के अंदर आएगी और वो इंस्टेंटली वो क्या करेंगे? वो शिफा पाएंगे, वो निजात पाएंगे, वो रहाई पाएंगे। हम जिंदगियों के अंदर रिडेम्पशन का काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस वक्त तक वो रिडेम्पशन हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो ईमान नहीं लाएंगे, तौबा नहीं करेंगे और ईमान नहीं लाएंगे। लिहाजा 4 लोगों ने ईमान रखा कि ये शख्स जो है वो रहाई हासिल करे, ये शख्स जो है अपने मफलूजपन से बच जाए और ये ठीक हो जाए। तो वो उसको उठा कर ले गए और यीशु मसीह ने उनके ईमान को देखकर उनको कहा कि बेटा तेरे गुनाह क्या हुए हैं? माफ हुए हैं। लेकिन बाज फकीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है? कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है? आमीन। ये ट्रुथ है, खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता है। हम फकीहों के साथ मुतफिक हैं। आमीन, मुतफिक हैं। तो फिर हम क्या कहें? हम फिर क्या कहें? अगर यीशु मसीह ये कहता है आसान क्या है गुनाह माफ करना, या ये कहना कि मफलूज को कि उठ और 4 पाई उठा, तो आज हम आसान क्या को देख लेते हैं। तो फिर खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आमीन। आज ये साबित हो गया है कि यीशु मसीह तसलीस का दूसरा कानून जो है वो साबित होता है। हालेलुया। कि वो गुनाह माफ कर रहा है और वो आसानी पैदा कर रहा है। फकीयों बताओ कि आसान क्या है? तुम गुनाह माफ नहीं कर सकते, या यूं कहते हैं कि मैं कौन होता हूं कि गुनाह माफ करूं? तो फिर मैं फिर कौन होता हूं कि मफलूज को कहूं कि उठो चल? फिर मेरे अंदर जो है मैं किस इख्तियार से कहता हूं? तो मैं क्या हूं? मैं जो है जैसे पौलुस रसूल कहता है कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें क्या करती है? सुकूनत करती है। आमीन। और ये तो जो है ऐन जो है वो यूहन्ना के कहने के मुताबिक है कि क्या है? वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई। कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई है और कलाम मुजस्सम हुआ है। तो आज वो कलाम जो मुजस्सम हुआ वो कहता है कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए हैं। आमीन। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ है कि ये साबित होता है कि वो क्या है? वो खुदा है। आमीन।
वो क्या है? खुदा है। और फिर फौरन यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कहा कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं। उनसे कहा तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हैं? आप अंदाजा कर ले कि ये कौन मालूम कर सकता है? उसने अपने स्पिरिट में मालूम किया कि इस तरह ये सोचते हैं। ये कौन है जो दिलों और गुर्दों को देख लेता है, उनको जांचता और उसकी पड़ताल करता है? हमने तो सिर्फ बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है कि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता और उसकी क्या करता है? पड़ताल करता है। तो ये कौन है जो ये कहता है कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं? और उनसे कहा तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? जो सोचों को जान लेता है, इरादों को जान लेता है, दिलों और गुर्दों को जांचता और उसकी पड़ताल करता है। हमने तो बाइबल मुकद्दस में खुदा के हवाले से पढ़ा है, इसलिए वो ये कहता है आसान क्या है। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, आसान क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट जीसस कह सकता है, ये मसीह यीशु कह सकता है, ये खुदावंद यीशु मसीह कह सकता है, जिसके बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसको उसने मसीह भी किया है, उसे खुदावंद भी किया है, और वो हमारा खुदावंद है। और हम आज शाम उसके कदमों में आए हैं, जो ये दलेरी के साथ कहता है आसान क्या है, ठीक है, नामुमकिन क्या है, मुश्किल क्या है। जो कुछ जिस चीज के का भी आप रेफरेंस उठा लेंगे, किसी बात का भी जिक्र कर लेंगे, ये नहीं हो सकता तो कोई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अगर आप अपने हमारे मसीह से पूछें ऐ खुदावन ये हो सकता है, वो तो कहता है खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। उससे ये बात कही, खुदा से क्या होता है? और ये तो पतरस लोगों ने क्वेश्चन किया तो फिर निजात कौन पाएगा? उसने कहा कि इंसान से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। आमीन। ये खुदा से हो सकता है। और आज जो है उसने जो ये साबित कर दिया है कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। और वो ये कह सकता है मेरे अंदर ये दिलेरी नहीं है कि मैं इस तरह की बात कर सकूं, आपके अंदर ये दिलेरी नहीं कि आप इस तरह से बात कर सके, तो फिर दिलेरी किसके पास है? खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। किससे सब कुछ हो सकता है? खुदा से सब कुछ हो सकता है। इसलिए उसने कहा तुम अपने दिलों में ये क्यों सोचते हो? आज शाम हम अपने दिलों में क्या सोचते हैं? ये तो फकीह तो कहते हैं कि ये क्यों कहता है कि गुनाह माफ, तुम्हारे गुनाह क्यों, ये कौन होता है गुनाह माफ करने का? ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा कोई गुनाह नहीं माफ कर सकता है। लेकिन आप देखिए कि अगर खुदावंद यीशु मसीह, गौर से सुनिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह इनकी इन बातों को जो अपना देख सकता है और ये कह सकता है कि तुम क्यों सोचते हो, तो सोचिए जो अपने प्यारों के अंदर की बातों को नहीं जानता होगा, वो ये नहीं जानता कि मेरे बच्चे किन चीज़ों की मुहताज हैं या किस तरह से ये मेरे कदमों में आए हैं और ये क्या चाहते हैं, क्या इनकी डिज़ायर्स हैं, क्या इनको जो है ज़रूरत है, इनको शिफा की ज़रूरत है, मैं शिफा दूंगा, इन्हें बरकत की ज़रूरत है, मैं इनको बरकत दूंगा, मैं इनको इत्मीनान दूंगा, मैं इनको तसल्ली दूंगा, मैं इनको बढ़ाऊंगा, मैं इनको कमाल तक पहुंचाऊंगा, मैं इनको सरफराज करूंगा, पस्त है मैं सरफराज करूंगा, गिरगे हैं मैं इनको खड़ा करूंगा। आमीन। ये गरीब और नंगे और जो है वो तंग दस्त हो गए हैं, मैं इनको क्या करूंगा, उठा कर जो है इनको फिर से कपड़े पहना दूंगा, इनको जूती दे दूंगा, इनको जो है बहाल कर दूंगा। क्यों बाइबल फरमाती है कि खुदा बहाल करने में क्या है, वो कादिर है। आमीन। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसान क्या है। आमीन। मफलूज से ये कहना, ठीक है, आप सुनिए, किससे कहना? ठीक बंदे से नहीं, बल्कि किस से? डेड शख्स से। एक ऐसी जो जिसके पार्ट्स डेड हैं, जो उठ नहीं सकता, मफलूज से कहना। वो तो मुर्दे को कहता है तो वो अपनी कब्र से बाहर निकल आता है, ये तो फिर जो इसके अंदर सांस है। आमीन। इसके अंदर तो सांस है, तो वो उससे कहता है, वो उसने तो उसको कह दिया जिसकी जो है रूह जो है वो अपना पताल में चले गई थी, वो आलम अरवाह में चले गई थी, वो शख्स को जो है वो उठा कर खड़ा करता है। तो ये तो फिर चारपाई पर सांस ले रहा था। आसान क्या है? मफलूज से कहना
कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। अब ये क्वेश्चन है दुनिया के सामने आज कि आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि चल फिर, या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए। हमारे नजदीक ये मुश्किल है, लेकिन क्राइस्ट ने फिर कहा, माफ पहले कर दिया, पहला काम उसने ये कर दिया कि मफलूज से ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। जवाब दीजिए। यीशु मसीह ने पहला सवाल का जवाब तो दे दिया कि तेरे गुनाह माफ हुए, और दूसरा जवाब आ गया, ठीक है, उसे सवाल भी किया और जवाब फिर कहता है, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। अगर कोई शख्स जो है वो इंतहाई जो है मफलूजपन का शिकार हो चुका है, और जो है वो जहनी तौर पर जो है वो मफलूज हो चुका है, जिस्मानी तौर पर वो मफलूज हो चुका है, और फिजिकली तौर पर इंतहाई कमजोरी का शिकार हो चुका है, और वो बंधनों और जुओं में बंध चुका है, और वो समझता है कि मैं आजाद नहीं हो सकता हूं, तो ये जो है ये वाकया, ये मौजज़ा उसको तसल्ली और इत्मीनान देता है कि खुदावन कर सकता है। खुदावन के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, और खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदावन जो है वो करने की कुदरत और कुव्वत रखता है, वो गुनाह भी माफ करता है। और ये समझे कि मैं जो है गुनाहगार हूं, और मेरे गुनाह कभी माफ नहीं हो सकते हैं, मैं अपने गुनाहों की कीच में फंसा हुआ हूं। तो एक हस्ती जमीन पर उतरी और उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर कर ये आलानिया कह दिया है कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। आमीन। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो है वो बेऐब खुदावंद है, बेऐब हस्ती है, जो कोई उसके पास आएगा वो उसके गुनाह माफ करेगा। आमीन। और जो कोई उसके पास आता है उसके सारे गुनाह माफ होते हैं, और जिस तौर पर इस शख्स के गुनाह माफ हुए और इसकी हीलिंग होने वाली है। आमीन। और जब तक कोई शख्स अपने गुनाहों से मुआफी नहीं पाता, जब तक कोई शख्स अपने गुनाहों से खलासी नहीं पाता या उसके गुनाह माफ नहीं होते, वो तब तक जो है वो रहाई हासिल नहीं कर सकता, वो शिफा हासिल नहीं कर सकता है। और भाईन यहां पर ऐसा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम जानो, दुनिया जान ले कि यीशु मसीह जो है वो माफ करता है। हमारी कोई भी गलती क्यों नहीं, कोई भी गुनाह नहीं, और वो फंस चुका है और वो निकल नहीं पा सकता। और जैसा कि ये शख्स है कि वो बेयारो मददगार हो चुका है, अगर कोई शख्स ऐसा है तो वो क्या कर सकता है, वो मसीह के पास आए या कोई उसकी मदद करे कि वो मसीह के पास आए। और जो ही वो शख्स उसकी हजूरी में आएगा, जहां वो खड़ा है, जहां वो मौजूद है, जहां वो तख्त लगाए हुए है, जहां वो बैठा है, जब कोई उसके पास आएगा तो वो साफ कह देगा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। सोचिए जब ये बात यीशु मसीह ने उसको कही होगी, उसके अंदर कैसा करंट अंदर दाखिल हुआ होगा, और कैसी जो बिजली उसके अंदर गई होगी, और उसके अंदर का एक एक सेल जो है क्या हो गया होगा, एकदम से जो है वो करंट दौड़ा होगा, कुव्वत दौड़ी होगी, और उसके दिलो दिमाग और नस नस पट्टे पट्टे और हड्डी हड्डी के अंदर जब वो गुदे गुदे में से गुजर गई होगी, और उसके अंदर एक जो है एक दरम से चैन तसल्ली इत्मीनान हो गया। और वही चैन इत्मीनान जो है जब आया होगा तो फिर यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यह है जिसके गुनाह माफ हुए हैं वो शिफा पा सकता है, जिसके गुनाह माफ नहीं हुए वो शिफा नहीं पा सकता है। ये साफ बात है। यीशु मसीह ये बात जानता है कि किस तौर पर कोई शख्स जो है वो रहाई हासिल कर सकता है। वो शख्स जिसने कोई गुनाह किया है, कोई बदी की है, वो रहाई पा सकता है। ये हरगिज नहीं कि कोई शख्स रहाई हासिल नहीं कर सकता है। कोई ऐसा बीमार है, ऐसा परेशान है, ऐसा मुसीबत ज़दा है कि वो रहाई हासिल नहीं कर सकता है, वो डिलीवरेंस हासिल नहीं कर सकता है। ये ऐसी बात नहीं है। क्राइस्ट क्या कर सकता है, वो रहाई दे सकता है। रहाई की जो है वो उम्मीद है। क्यों? क्योंकि
यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब दलबाद जिंदा है, और जो भी आज भी उसके पास जो है वो आता है वो उसे पूरी पूरी निजात दे सकता है। आमीन। और आज जो है उसके पास आया है और उसने उसको कहा तेरे बेटा गुनाह माफ हुए और मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जाए। लिहाजा उसी बाइबल मुकद्दस में लिखा वो उठा। वो जो भीड़ लगी हुई थी, वो जो है वो घर जो है वो लोगों से हजूम से भरा हुआ था, और उस दौरान में जब ये शख्स उठा हुआ होगा उस दौरान में कैसी हलचल उस घर के अंदर और इर्द गिर्द हजूम के दरमियान में जो होगी कि यही हाँ ये सच बात है, और खुदा की तमजीद होने लगी, हैरानी होने लगी कि वाकई ही ये है जो गुनाह माफ भी करता है और शिफा भी देता है। आमीन। लिहाजा हमारा खुदावन हमारे गुनाह माफ करता है और हमें शिफा देता है। इसलिए आइए अपने मसीहा के पास चलें, अपने खुदावन के पास चलें, अपने यीशु के सामने खड़े हो जाएं। उसके सामने अगर हम लेटे भी होंगे वो उठा खड़ा करेंगे, अगर गिरे भी होंगे गिरी हुई हालत के साथ आएंगे वो ऐसा खड़ा करेगा कि दुनिया देख लेगी और खुदा की तमजीद करेगी। उस दिन दुनिया ने देख लिया और जान लिया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जानो। आमीन। आज जानने का वक्त है। आमीन। कि दुनिया जान ले कि यीशु मसीह गुनाहों को माफ करता है और शिफा देता है। आमीन। लिहाजा आइए उसके पास चलें, आइए उसके कदमों में आए। आप माफ़ी, निजात, रहाई और शिफा हासिल करने के लिए अगर आपके पास बहुत सारी यह दरखास्तें हैं तो आइए दरखास्तों के साथ उसके सामने बैठ जाइए, उसके कदमों में आ जाइए। उसने उस वक्त जो है उन लोगों ने जो उधेड़ कर जो है घर उधेड़ दिया, छत उधेड़ दी, और मसीह के पास आइए सारी रुकावटों को दूर कर या यीशु मसीह के सामने आ जाएं ताकि वह आपके ईमान को देख लें कि आज शाम आप किसके लिए पटिशन करने वाले हैं, आज आप किस दरखास्त के साथ आए हैं। ये 4 आदमी इस मफलूज को लेकर आए हैं। आज शाम आप किस दरखास्त के साथ आए हैं, किसको साथ लेकर खुदा उनकी हुजूरी में आए हैं ताकि वो शिफा पाए, ताकि वो रहाई हासिल करे, ताकि वो निजात हासिल करे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि आप खुदावन की शिफा को, खुदा की निजात को देखें? और जो ही मैं अजीज बहनों भाइयों, आप जब छत को उधेड़ कर यीशु के सामने उसको उतार देंगे, जब वो छत को उधेड़ कर यीशु के सामने से पेश कर देंगे, लम्हा भर में आप अपनी जिंदगी के अंदर भी जो है वो तसल्ली इत्मीनान पाएंगे। और इंस्टेंटली जहां जहां कोई शख्स जिसके लिए आप पिटिशन, जहां जिसके लिए रिक्वेस्ट या प्रेयर या मनाजात या दरखास्त या दुआ करना शुरू करेंगे तो उसी लम्हे क्या होगा, निजात, रहाई इंस्टेंटली होना शुरू हो जाएगी। आमीन। तो आप तैयार हैं? आइए उसके सामने झुकें और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बंधन और जुए टूट जाते हैं, रहाई का काम होना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए आप दरखास्त करना चाह रहे हैं आज शाम, जिसको आप खुदावंद के सामने पेश करना चाहते हैं, बड़े ईमान के साथ, उन 4 आदमियों ने बड़े ईमान के साथ यीशु मसीह के सामने जो है वो आदमी को, मफलूज को पेश कर दिया। आज आप भी बड़े ईमान के साथ जो है वो पेश कर दें। अगर कोई शख्स जो है खुद ही मफलूज है और वो मसीह के पास आना चाहता है और वो अपने गुनाहों में जो है वो दबा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है, तो वो मसीह को पुकारे, वो मसीह के सामने आ जाए और खुदावंद से कहे कि खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे अपने खून से जो सलीब पर तूने बहाया है वो सलीबी खून के वसीले से मुझे शिफा दे दे, बरे के खून के वसीले से मैं धुल जाऊं और पाक और साफ हो जाऊं, मैं शिफायाब हो जाऊं। हालेलुया। वो हमें जिंदगी, निजात, शिफा, रहाई देने में कादिर खुदा है। हालेलुया। आइए खुदावंद से मांगना शुरू करें और रहाई का एक्सपीरियंस करना शुरू करें। और जो ही आप खुदावंद के हुजूर में दुआ करेंगे, जो ही आप
बड़े ईमान के साथ उसको पेश करेंगे, आप इंस्टेंट हीलिंग देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। अपने अपने आप को उसके सामने झुका दे। ऐ खुदाम खुदा रहाई देना शुरू कर। ऐ खुदाम खुदा देख, हम ईमान के साथ इस दरखास्त के साथ आए हैं, हम बड़े ईमान के साथ ऐ खुदाम खुदा इस मनाजात के साथ आए हैं। तू अपने कादर नाम से तू शिफा अता कर। हमने जान लिया है कि सिर्फ तू ही माफ कर सकता है, हमने जान लिया है कि तू ही शाफी है, तू उठा खड़ा करता है। देख मैं गिर गया हूं, मुझे उठा खड़ा कर। देख मैं ऐ खुदा अपनी बीमारी में परेशान हूं, मुसीबत ज़दा हूं, मुझे शिफा अता कर। ऐ खुदा मैं बिल्कुल मुतासर हो चुका हूं, मैं फिजिकली कमजोर हो चुका हूं, मुझे शिफा अता कर। हालेलुया। मैं कारोबारी तौर पर, मैं खानदानी तौर पर बिल्कुल पस्त हो चुका हूं। ऐ खुदावंद तू मेरी मदद कर। मैं ऐ खुदा इंतहाई गरीब गुर्बत का शिकार हो चुका हूं। ऐ खुदा देख मैं ईमान के साथ तेरे पास आता हूं। मैं ऐ कमी का शिकार हो चुका हूं। ऐ खुदा मेरे पैसे की कमी का शिकार हो चुका हूं, मेरा बिजनेस ठप हो चुका है। खुदा मैं बदनी तौर पर कमजोर हो चुका हूं, मैं एकदम माली तौर पर कमजोर हो चुका हूं, मैं उठ नहीं पा रहा, मैं माली तौर पर मफलूज हूं, मैं बदनी तौर पर मफलूज हूं, मैं रूहानी तौर पर भी मफलूज हूं। खुदावंद मुझे तू शिफा अता कर। मैं ईमान के साथ आया हूं, बल्कि मैं ईमान के साथ उन भाइयों को भी पेश करता हूं, उन बहनों को भी पेश करता हूं जो इस हालत के अंदर है, वो खानदानी तौर पर जो है वो कमजोर हो चुके हैं। खुदाम यीशु मसीह के नाम से वो रहाई पाए। खुदाम यीशु उनको रहाई देने में कादर है। हालेलुया। खुदाम छू रहा है, खुदा का पाखरू छू रहा है। खुदाम जीव तौर पर हमें बरकत दे रहा है। खुदाम का पाखरू हमारी जिंदगियों को, हमारी रूहों को छू रहा है। हालेलुया। जीव तौर पर उसकी कुदरत हमें छू रही है। बड़े ईमान के साथ उसे रिसीव कीजिए। वो हमारे दिलों गुर्दों को जानता और उसकी पड़ताल करता है। हालेलुया। उसका आसमान खुल गया है, सुपरनेचुरल पावर हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल होना शुरू हुई है। आइए इस सुपरनेचुरल पावर को अपनी जिंदगी में इसका एक्सपीरियंस करना शुरू करें। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। तेरा शुक्र हो। बरकत को मांगिए, बरकत दे मुझे खुदावन, तसल्ली दे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, praise Jesus Christ। उसे मांगिए बरकत को और वो बरकत देगा, अजीब तौर पर हमें बरकत देगा, अजीब तौर पर हमें बरकत देगा। We praise you Jesus Christ, we praise you Jesus। मांगिए बरकत दे मुझे यीशु। Thank you Lord। तू सूर्य हमारा है, Yes Lord। फतिहा का नारा है। हालेलुया, हालेलुया। तू सूर्य हमारा है, फतिहा का नारा है। तू सूर्य हमारा है, फतिहा का नारा है। तू सूर्य हमारा है, फतिहा का नारा है। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। हम सब पे करम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु,
मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। हालेलुया हालेलुया, मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरी आँखें रोशनी है, अश्कों से भिगोती है। मेरी आँखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं। मुझे दामन छूने दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। आइए अपने दिलों पर आप हाथ रखिए और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, ताकि खुदा अच्छी तौर पर हमारी जिंदगी को छुए और शिफा दे। और किसी की जिंदगी के अंदर गुनाह भी है, बदी भी है, कमी भी है, कमजोरी भी है, वो अभी दुआ की वसीले से अभी खुदा अच्छी तौर पर अपनी कुदरत से उसे रहाई अता करेगा। मैं पास्टर कैथरीन को सामने बुलाऊंगा कि वो आए, वो दुआ में रहनुमाई करें और इस रात में खुदा अच्छी तौर पर हमें छुएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. आप जहां जहां बैठे हैं अपने आप को देखें, क्या किसी दीवार ने तो नहीं आपको घेरा हुआ? क्या कोई दरवाजा तो नहीं बंद किया हुआ? क्या कोई खिड़कियां तो नहीं बंद हुई जो खुदावंद यीशु तक नहीं पहुंच सकते? अगर ऐसा है, दीवारें तोड़ दे, दरवाजे तोड़ दे, दीवारें तोड़ दे, छत को उधेड़ दे, अपने खुदावंद के पास जाने के लिए जो भी हिंडर्स हेलन्स हैं उनको अपने से दूर करके अपने मसीह की सलीब का रास्ता ले लें। रास्ते के सारे जितने भी बंद हैं तोड़ दें, पानियों को अबूर कर दें, समुद्रों को अबूर कर दें, अपने मसीह के पास जाने के लिए। आज जरूरत है कि हम उसके पास पहुंचे, दौड़ते हुए जल्दी से पकड़े, ताकि हम अपने मसीह के पास बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएं। उसको बहुत से ईमानदारों ने घेर रखा है। एक आप हैं, आपकी भी जरूरत है, और वो ज्यादा गहरे ईमानदार को पसंद करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. अपने दिलों को अपने खुदावंद के सामने उड़ेलिए और वो फिर हुक्म देगा, अपनी चारपाई को उठा और चल फिर।
जिस जल्दी में मेरे पास आई, तेरे गुनाह, तेरी गलतियां, तेरी खताएं मैंने माफ कर दी हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तूने हमारी गलतियां, खताएं, गुनाह माफ किए। गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह गुनाह है। और ए खुदावंद, तू हमें गुनाहों से आजाद कर दे। और फिर हमारे दिल का मफलूज है, हमारी कोई आंखों का मफलूज है, कानों का मफलूज है, सोचों का, दिमागों का मफलूज है। ए खुदावंद, तेरे हुक्म के मुताबिक सब कुछ हो जाएगा, मफलूज उठ जाएगा। ए खुदावंद तेरे शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। आज के खुदावंद एक बड़े मौजज़े ने हमें खुदावंद खुदा एक अपना मौजज़ा दिखा दिया है। हमारे घरानों में मौजज़ा कर दे, मेरे साथी में मौजज़ा कर दे, मुझ में मौजज़ा कर दे। दोनों तरह से अपने चारपाई उठा, चल फिर, तेरे गुनाह माफ हो गए। खुदावंद तेरा शुक्र है। एक एक के लिए बरकत मांग लेती हूँ, एक के लिए शिफा मांग लेती हूँ। हमारी चारपाइयां, हमारी कुर्सियां, हमारे सोफे ए खुदावंद खाली हो जाए और हम तेरी हुजूरी में खड़े होने वाले हो जाए। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। आज की खूबसूरत मीटिंग के लिए, शिफाया दुआया मीटिंग के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। पूरी कलीसिया को ए खुदावंद शिफा दे, पूरी कलीसिया को उनके घरों से ए खुदावंद खुदा निकालने वाले बन जाएं। 1 2 3 4 उनकी चारपाई उठा कर ले आए, ताकि खुदावंद तेरा घर भर जाए, मफलूज तेरे घर आ जाए और आराम पाए। कलीसिया के लिए दुआ करती हूँ, प्रिजाइडर्स के लिए दुआ करती हूँ, एल्डर्स के लिए दुआ करती हूँ, पूरी क्वायर के लिए, साजिंदों के लिए। ए खुदावंद खुदा, कोई मफलूज होकर घर में न रहे, बल्कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि वो तेरे पास सजदा के लिए आए। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। तेरे खादिम के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ। इसी तरह खुदावंद तेरे कलाम का बीज, ईमान का बीज, वो हमेशा इसी तरह बखीर करे। आज की इबादत 100 गुना फल लाए, 22 से बरकत है। सब कुछ मांग लिया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सीखोगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रिफाकत और शरफ हम सब के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।